आयुर्वेदा के हिसाब से स्किन का स्ट्रक्चर कैसा है एग्जैक्टली? According to Ayurveda, 7 layers of defense mechanism. परफेक्ट स्किन कैसे डिफाइंड होती है आयुर्वेदा में? आप कभी भी स्किन के कलर को देखकर ये जज मत करिए कि वो परफेक्ट है। प्रकृति के हिसाब से आपकी स्किन परफेक्ट होती है। एजिंग, रिंकल्स 25-20 की एज में हो रहा है। The stress, the adulteration, the lifestyle, the food. 20 में girls and boys have wrinkles. Why? A lot of stresses. So I have seen a lot of people 60s, 70s, 80s में भी they have such a glowing skin, lustrous skin. अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा है, नरिशमेंट अच्छा है, तो आपकी स्किन भी अच्छी फॉर्म्ड होगी। आपकी अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो यानी आपके गट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या एसिडिटी भी हो। Skin is the largest organ of the body and skincare industry is the biggest industry out there. Ayurveda views skin as being a reflection of your innermost health. And today we have our expert Vaidya, Dr. Saurabh Sharma, who is going to delve into the area of skin through the lens of Ayurveda. We're going to understand why skin problems happen, what is the concept of Ayurveda behind it, and how you can solve these issues easily. A very warm welcome, Dr. Saurabh. Thank you. So, Dr. Saurabh, let's start with the concept of skin in Ayurveda. How does Ayurveda see skin? Well, first of all, I have to say that skin is my favorite topic also. Okay. Skin, I mean, in general, what we usually believe is skin is something which is covering the body, it's first line of defense. This is something which everyone knows. But according to Ayurveda, skin is a upadhatu. What is upadhatu? We have always discussed about the 7 dhatus, rasa, rakta, mamsa, meda, asthi, majja, shukra. It is one of the sub tissue. Okay. So upadhatu of masa dhatu. So upadhatu means, what is dhatu? Dhatu means dharana dhatva. It means जो कि धारण करता है, which is forming the body. धारण करने वाले, that is dhatu. So the importance of skin is to धारण, यानी बॉडी को पूरा कवर करना, तो बॉडी को पूरा फॉर्म करना is basically the skin. Okay. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्किन के बारे में ये भी कहा गया है शुक्र शोणित, यानी शुक्र एंड शोणित. इट मीन्स द शुक्र एंड द शोणित मीन्स लेट्स से द स्पर्म एंड द ओवम व्हेन दे फॉर्म टुगेदर इन द 3rd month द स्किन इज फॉर्म्ड. Okay. सो आप इस चीज को समझिए कि आपकी जो स्किन है वो आपकी शुक्र और शोणित पर भी डिपेंड करती है. So how your sperm and how your ovum is at the time of conception? Oh yes. It is responsible for how your skin is going to be made. Exactly. Okay. Exactly. So tell me more. As we discussed, स्किन को हम लोगों ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस समझ लिया, इन्फ्लेमेशन रोकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट स्किन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो बाकी धातुएं हैं, इमेजिन आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, इमेजिन आपकी बॉडी में मांस धातु है, इमेजिन आपकी बॉडी में बोन्स यानी अस्थि धातु है. उन सबको कौन फॉर्मली रखेगा? स्किन. इस बारे में हम नहीं सोचते. हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग स्किन के बारे में सोचते हैं स्किन इज अबाउट कॉस्मेटिक, ब्यूटी, अच्छा दिखना चाहिए. बट स्किन आपका रिफ्लेक्शन है आपके गट का, आपकी इनर हेल्थ का, आपके डाइजेशन का, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, आपकी ओवरऑल वेलबींग का भी. या बट यू नो स्किन आपने बोला गट रिलेटेड है, एंड बहुत ही अर्ली स्टेजेस में स्किन फॉर्मेशन हो जाता है. Of course, you know, a baby can't control that, you know, how their skin is going to be. But the mother and father can. Exactly. Is there something that they can do at the stage of, you know, conception or before conception to control how the skin of the baby will be? Oh yes, I think this can be really talked a lot about, but I always suggest my friends and my patients, whenever you're planning for a child, always go for a pre-purification, like a panchakarma procedure. A panchakarma procedure. It's very, very important because you basically clean your body. And apart from that panchakarma only, I always suggest to go for meditation practices, brain relaxation. Even in the Vedas also it is clearly mentioned when you're planning for conception, you have to be, you know, mentally, physically clean, detoxified, calm, relaxed. So everything depends. So many autoimmune disorders, even with the skin also. You must have seen a lot of children born with atopic or seborrheic dermatitis. Yes. Why? It's not the pollution. We cannot talk about pollution only. It's about the stresses also. So your shukra and shonit are going to get you a good quality skin actually. So the sperm and ovum, how polluted they are from within determines, you know, the skin of the baby and your overall life, you know, how your skin is going to be. Exactly. So that is one, you know, hereditary factor जो हमने ले लिया है. As an adult, what is the link between your gut and skin? Skin को आयुर्वेद में कहा जाता है त्वक.
मीन्स त्वचा। अब हम यहाँ त्वचा की बात कर रहे हैं। त्वचा इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ पित्ता दोषा। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं वात पित्त कफ क्या है। शायद सबको याद भी होगा। वात यानी एयर या विंड एलिमेंट हमारी बॉडी में, पित्त यानी फायर जो कि मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, और कफ यानी वाटर या स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मनेस देता है। तो जो हमारी स्किन है ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन है आपके पित्त का। यानी अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपकी कहीं ना कहीं पित्त का इम्बैलेंस है। और पित्त का मेन साइड क्या है? गट, यानी सिंपली अंडरस्टैंडिंग लिवर एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे गट में कोई भी प्रॉब्लम होगा, मेरे डाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो दिस इज गोना स्ट्रेट अवे रिफ्लेक्ट ऑन माय स्किन। सो दिस इज अ स्ट्रेट कोरिलेशन दैट आपकी अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो यानी आपके गट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन या एसिडिटी भी हो। आई डोंट अंडरस्टैंड कि फायर एलिमेंट आपने बोला, उससे मुझे स्किन डिसऑर्डर कैसे हो सकता है? मतलब फायर एलिमेंट क्या है, क्यों, किस चीज को कंट्रोल कर रहा है? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ओके। आहार यानी हमने कुछ खाया, उसके बाद there are 7 धातुस which are formed one after another. So when you have ahar, you have agni working, which is the pitta dosha working on it. Then rasa, rasa धातु is formed. Then the rakta धातु is formed. And we always say, आपने सुना होगा अक्सर लोग कहते हैं कि अरे यार इसके तो स्किन में ये प्रॉब्लम है, इसके ब्लड में इम्प्योरिटीज है। दिस इज अ कॉमन थिंग। सो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके ब्लड में, और ब्लड क्या है? अब आपका सवाल और आंसर दोनों। ब्लड क्या है? ब्लड इज द सीट ऑफ योर पित्ता दोषा। तो अगर आपकी अग्नि सही से काम नहीं कर रही है तो आपका रसा धातु सही से नहीं बना, रसा धातु नहीं बना तो रक्त धातु नहीं बना, और अगर रक्त धातु नहीं बना तो आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे भी 2 तरह की चीजें होती है। कई बार तो मेल न्यूट्रिशन, अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा। एक कॉमन सी प्रॉब्लम आपसे शेयर करता हूँ। आपने देखो बच्चों के फेस पे छोटे छोटे व्हाइट पैचेस होते हैं। इनफैक्ट एडल्ट्स को भी देखा होगा। हम लोग क्रीम्स लगा रहे होते हैं, हम लोग किसी भी तरह का कॉस्मेटिक यूज करते हैं। आपको अग्नि पर काम करना है, यानी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है। और दूसरा रीजन हो सकता है आपकी बॉडी में आमा है। एडल्ट्स में भी आपने देखा होगा स्किन पे व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, दुनिया भर की डिजीजेस होती हैं। द रीजन इज आमा। So there are 2 things basically. That's why I'm correlating this gut with the skin. Okay. या तो आपको malnutrition हुआ, उसकी वजह से आपको स्किन पे प्रॉब्लम हुई, या फिर आपकी बॉडी में आमा accumulation है जिसकी वजह से आपको स्किन में प्रॉब्लम। So this is why very very important, gut is directly proportional to your skin health. So gut में आपने ये बोला मुझे कि अग्नि जो है अगर सही से काम नहीं कर रही है, it is not absorbing the nutrients. Yeah. और क्योंकि उन्हीं न्यूट्रिएंट से हमारा ब्लड बनता है, Exactly. रस धातु एंड रक्त धातु, Wonderful. जिसे हिंदी में कहते हैं। अगर वो सही से नहीं बना है, देन इट सर्कुलेट्स इन योर एंटायर बॉडी एंड स्टार्ट्स accumulating that imbalance Exactly. under your skin. Exactly. That's one concept. Yeah, yeah. And the other concept is के toxins, आमा, जिसे yeah. हिंदी में कहा जाता है, टॉक्सिन्स का accumulation बहुत होता है और मैल न्यूट्रिशन हो जाता है उसकी वजह से, और वो भी स्किन की प्रॉब्लम्स दे सकता है। Exactly. ठीक है। सो मान लीजिए कि अग्नि इज वन रीजन एंड टॉक्सिन्स इज अनदर रीजन। अब हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे खाने में ऑफ कोर्स उस तरह की प्योरिटी नहीं है। तो what would you recommend to people with skin disorders? What do they start fixing first? आपने कहा गट को फिक्स कर लो, तो क्या स्किन डिसऑर्डर फिक्स हो जाएगा पूरा? ऑलमोस्ट, लेकिन गट से इम्पोर्टेंट एक और चीज है, वो है निदान परिवर्जन। व्हाट इज निदान परिवर्जन? What is that? निदान परिवर्जन यानी उसका रूट कॉज। अजी गट को तो आज हम ठीक कर लेंगे, बट अगर आप रोज जंक खा रहे हो या इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन में वो एडल्ट्रेशंस कर रहे हो, तो फिर कहाँ ठीक होगा? अब पंचकर्म रोज थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। आप एक चीज को मत लीजिए, आप सारी ही चीजों को कोरिलेट करिए। बिकॉज आप गलत खा रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं नहीं मेरा तो गट की वजह से हो रहा है। गट को तो आपने खराब किया ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका लाइफस्टाइल, आपकी फूड हैबिट्स। अगर आपकी फूड हैबिट्स ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक है, फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो यानी गट में कोई प्रॉब्लम है। फिर आप पंचकर्म करिए। और आयुर्वेद में जैसा कि मैंने पित्त के बारे में बोला, उसमें एक सब डिवीजन होता है, उसे भ्राजक पित्ता बोलते हैं। सो वात पित्त कफ के 5 सब डिविजन है। तो अगर पित्त का इतना इम्बैलेंस है तो उसमें एक पंचकर्म में प्रोसीजर होता है जिसे हम विरेचन कहते हैं। हर रोज नहीं पॉसिबल है ये। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है निदान परिवर्जन, जो उसका रूट कॉज है उसको आप दूर करिए। उसके बाद क्लींजिंग प्रोसीजर्स है, डाइट एंड डेली रूटीन है, एंड देयर आर सम मैजिकल आयुर्वेदिक हर्ब्स आल्सो। सो ऑल टुगेदर आप स्किन को अच्छा रख सकते हैं। होलिस्टिक ट्रीटमेंट फ्रॉम ऑल एंगल्स। बट कमिंग बैक टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पित्ता दोषा, आपने कहा कि ठीक है गट का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है एंड पित्ता दोषा इम्बैलेंस जहाँ होता है, तो आप कह रहे हैं कि ये जो पंचकर्म थेरेपी, जैसे आपने विरेचन बोला, does that take care of that dosha or does it fix your gut health? What does it fix?
So basically, Panchkarma is a cleansing procedure. Virechan is one of the Panchkarma. There are 5 karma. Virechan. Okay. Virechan specifically works on aggravated imbalanced pitta dosha. Okay. ये मत समझिए कि विरेचन करने से पित्ता निकल जाएगा, पित्ता निकल जाएगा तो मेटाबॉलिज्म खत्म हो जाएगा, अच्छा। डाइजेशन नहीं होगा। Okay. So, जो चीज इम्बैलेंस में है, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, कोई इम्बैलेंस होगा तो डिजीज होगा। So what is disease? Disease is just the imbalance of the doshas or let's say imbalance of the dhatus. So जो विरेचन प्रोसेस है, अगेन वही बोलूंगा, हर प्रोसेस पूरे साल नहीं किया जा सकता, बट पंचकर्म में विरेचन जो प्रोसेस है वो एग्रीवेटेड और विशिएटेड पित्ता को बाहर निकाल देगा, तो आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा होने लगेगा। जैसे एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। But tell me what exactly विरेचन में होता क्या है? Oh, विरेचन इज अ वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। Okay. सो विरेचन इज अ प्रोसीजर जिसमें इट्स अ प्रोसेस, नॉट लाइक आपने दवाई लिया कुछ हुआ, इट्स अ Okay. प्रोसेस ऑफ 5, 8, 10 डेज, जिसमें आपका पूर्व कर्म होता है, प्रधान कर्म होता है, पश्चात कर्म होता है। बट विरेचन टू सिंपली अंडरस्टैंड इज अ प्रोसीजर जिसमें आपको कुछ मेडिकेटेड हर्ब्स खिलाई पिलाई जाती हैं, जिससे कि आपको कुछ परगेशन यानी लूज मोशंस जैसे होते हैं। अच्छा। तो जो भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा पित्त है वो निकल गया। जैसे वमन में होता है ना, आपको वोमिट के थ्रू निकाला जाता है, वो कफा दोषा के लिए होता है। Yeah. उसी तरह पित्ता दोषा के लिए विरेचन हो जाए, जिससे कि विरेचन यानी लूज मोशंस के थ्रू या स्टूल के थ्रू दोषा को, विशिएटेड दोषा को, नॉट नॉर्मल को, विशिएटेड दोषा को बाहर निकाला जाता है। ओके, बट ये कितनी बार एक इंसान जिसको स्किन डिसऑर्डर है कोई भी, उनको कितनी बार ये करना चाहिए या लेना चाहिए? देखिए, स्किन डिसऑर्डर भी बहुत तरह के हैं, बहुत तरह के हैं। अगर किसी को एक छोटा सिंपल लेट्स से एक्ने वल्गैरिस, जो कि सुपरफो जो हमारी 6 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं, उसमें अगर सबसे सुपरफिशियल लेयर में मान लीजिए एक्ने वल्गैरिस हो रहा है, तो उसमें मैं मानता हूँ शायद साल में 1 या 2 बार भी विरेचन लेते हैं तो ठीक तो है। enough बट देयर आर केसेस, बिलीव मी फ्रेंड्स, देयर आर केसेस जहाँ पे मैं सद्यो विरेचन यानी नॉट द होल प्रोसेस बट माइल्ड क्लिनजिंग, कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे चैत्रिफ्ला ले लीजिए, स्वादिष्ट विरेचन लीजिए, कुछ इस तरह की हर्ब्स होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार इसका तो पित्ता बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है, इसको तो रेगुलर विरेचन देना चाहिए। अच्छा। कुछ इस तरह के लोग हैं जो कितना भी समझा लीजिए फिर भी वो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। अच्छा। तो इसलिए हम उनको हमेशा बोलते हैं कि यार आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा विरेचन आपको होना चाहिए, बिकॉज आपकी बॉडी में रोज ही कुछ ना कुछ टॉक्सिन एक्यूमुलेट हो रहा है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन, योर विकृति लेवल्स, योर इम्बैलेंस लेवल्स, कि आपको विरेचन कितना ऑफन लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। विरेचन का भी कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट और साथ में तो साथ में। Can this cure somebody's skin disorder? Yes. Have you seen such cases? Oh, many every day. Yeah. I mean, most of my cases in my OPDs are either gastro or skin related. Okay. But I remember a few years back, I was sitting in my office and one guy from Haryana somewhere and from the village came with a wheelchair. On the wheelchair, he was a 65-year-old man, totally stiff like this. He couldn't even move. So the disease which I diagnosed was psoriatic arthritis. So psoriasis, because it's an autoimmune disorder, when it is in the aggravated stages, it gets into the bones and the joints. Yes. So you become arthritis. It's a very very painful procedure. Okay. He came to us. I thought, what do we do? We're thinking a lot. Then I said, okay, let's plan the Virechana. For Virechana, you have to give 3 to 5 days of Snehapana. It means you have to give certain medicated ghee, which the person takes. So the Snepan is somebody takes ghee. Snehapan. Sneha Okay. means the ghee. It can be any, viscous stuff. You have to pan means खाना है उसको, ड्रिंक करना Eat it. every day. Okay. So 3 to 5 days का प्रोसीजर होता है, देन स्नेहन स्वेदन होता है, देन विरेचन. सो विद दिस केस हमने क्या किया, 5 डेज के स्नेहपान, क्योंकि स्नेहपान आप घर पे देते हो कि आप घर पे ले लेना. 5 डेज आफ्टर मैं देखता हूँ एक बंदा चल के आ रहा है. अच्छा. And I was not sure. मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट. He said, आपने मुझे पहचाना? I said, no. सर मैं 5 दिन पहले व्हील चेयर पे था. I said, oh my god, Wow. really? He said, yeah, मैंने बस घी पिया और मैं ठीक हो गया. Oh. His skin didn't got absolutely better, but his arthros went away. Oh. And then we gave him Virechana, and in 1 month of course of time, his skin psoriasis I'm talking was almost 80 to 90% healed. The best and fortunate part was this guy was from village, so भिषक वश्यो ऐसा हम आयुर्वेद में बोलते हैं. भिषक यानी वैद्य, वश्यो यानी उसके कंट्रोल में. So what I said, he followed everything, and By the book. psoriasis, which is basically an autoimmune disorder, उसमें भी इतना amazing result था जिसकी कोई हद नहीं. That is brilliant. It's a great case study to share. Let's go into further detail about skin in Ayurveda, because I want to understand Ayurveda के हिसाब से skin का structure कैसा है exactly. मॉडर्न साइज में कुछ लेयर्स की बात की जाती है, बट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा डिफरेंट आचार्यों के अनुसार अलग है, बट बेसिकली देयर आर 7 लेयर्स. 7 लेयर्स ऑफ स्किन, यानी कि 7 लेयर्स ऑफ स्किन का मतलब क्या हुआ, 7 लेयर्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म. 1 लेयर, 2 लेयर, अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मासधरा, ये 7 लेयर्स हैं. आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए कुछ भी
बैक्टीरिया, एलर्जन, वायरस या कुछ भी अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो नॉर्मली बोलते हैं ना स्किन इज द डिफेंस। हमारे पास 7 लेयर्स हैं आयुर्वेदा में, और परत दर परत अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो परत दर परत होती है, यानी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी सो बिगनिंग में अवभासिनी पे होगी, तो वहीं पे हमारी बॉडी को समझ जाना चाहिए कि कुछ हो रहा है। मान लीजिए, चलिए बात करते हैं छोटा सा, लेट्स से एक्ने वल्गैरिस, एक्ने, सो ये फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन पे होता है, अवभासिनी पे होता है। अब आप समझिए कंसेप्ट को, अक्सर क्या करते हैं लोग, अवॉइड कर देते हैं। पीपल स्टार्ट पुटिंग एनी क्रीम्स और एनी ऑइंटमेंट्स ऑल्सो एंड दे ट्राई टू सप्रेस इट, बट बेसिकली दिस इज द इंडिकेशन। फिर वो धीरे धीरे और डीप जाता है और डीप जाता है, देन पस फॉर्मेशन होता है, लोहिता तक जाता है, लोहिता यानी लोहे के समान, आयन के समान मंडूर, तो उसमें डिस्कलरेशन होता है। फिर वो और श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, वेदिनी में जाता है वेदना, वेदना मीन्स पेन। तो जब आपके एक एक्ने में पेन होने लगे, इसका मतलब यह है वो 4th लेयर तक पहुंच गया, और अगर वो और नीचे जाता है तो वो आगे जाके साइनस क्रिएट कर देता है। तो आप देखिए कितना साइंटिफिक और कितना अच्छा है कि हमारी 7 लेयर्स में स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम डीप जाती है। जैसे हमारे आयुर्वेद में कहा गया देयर आर 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज, राइट? नॉर्मली कहते हैं ना, वो एग्जांपल मैं हमेशा लोगों को देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप क्या सोचते हो, अच्छा स्किन प्रॉब्लम है, चलो कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं। बट बेसिकली स्किन प्रॉब्लम जो हुई है ये 5th और 6th स्टेज में जाकर हो रही है, मतलब बहुत लेट हो चुका है, और आपकी बॉडी बहुत टाइम से उससे जूझ रही है, एंड नाउ इट हैज come out and maybe it is manifested as the, let's say, पोस्ट इफेक्ट ऑफ एनी डिजीज। सो योर स्किन में अगर कुछ हो रहा है तो वो किसी डिजीज का मैनिफेस्टेशन है ऑलरेडी। अच्छा, जैसे भी मैंने एक्ने वल्गैरिस की बात की, यानी फुंसियों की बात की है ना, सो एक्ने वल्गैरिस अगर हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी में ऑलरेडी कोई इन्फ्लेमेशन पहुंच चुका है। ये कितना टाइम लगता है इसको डेवलप होने में, कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये यूजुअली टीनेज में शुरू होता है, स्पेशली विद वुमेन, सो व्हाई डज दैट हैपन? उस समय पे ऐसा क्या गलत कर रहे होते हैं यंग गर्ल्स या फिर यंग बॉयज दैट इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग एट दैट स्टेज ऑफ लाइफ? देखिए 2 चीजें हैं, वन इज द हार्मोन्स, ऑब्वियसली हार्मोन्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हार्मोन्स क्या हमारी बॉडी में पित्ता का मैनिफेस्टेशन है, तो देखिए सब चीज घूम के समझ में आ रही है। पित्ता क्या था, गट डाइजेशन, पित्ता क्या है, हार्मोन्स का मैनिफेस्टेशन, स्किन क्या है, सीट ऑफ पित्ता आल्सो, राइट? सो ये सारी चीजें साथ में है। तो वो जो एज है, सो शायद आपको याद होगा, आप सभी व्यूअर्स को भी याद होगा कि जो शुरुआत की एज है अप टू 15 तक है ना, वो कफा टाइम होता है। फिर धीरे धीरे जैसे आप प्यूबर्टी में आते हैं, टीन एज में क्रॉस आते हैं, फिर 30-35 तक पहुंचते हैं, तो पित्त का टाइम है। सो पित्त का टाइम और पित्त की प्रॉब्लम, इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पित्त के काल में कम से कम अपने पित्त का ध्यान रखें। तो वो कैसे करें? हमेशा एक ही बात बोलता हूँ मैं आप सभी को, डाइट, डेली रूटीन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस लेवल्स, हाँ, लाइक मेंटल स्ट्रेस, वो तो बहुत कॉमन है आजकल की यंगर जनरेशन में। यू आर सेइंग दैट इज रिलेटेड टू स्किन डिसऑर्डर्स, स्ट्रेट अवे प्रोपोर्शनल। Okay, but explain it to me. How can a young person, let's talk about acne. Let's take that as a case study. Acne वाले अपनी स्किन के लिए अर्ली ऑन अगर उनको रोकना है इस प्रॉब्लम को बढ़ने से, उनको क्या करना चाहिए? पित्त दोष यस ठीक करना है, बट कैसे करना है? बहुत सारे तरीकों से करना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने एक्ने की बात की, इट्स वेरी कॉमन। जैसे मैंने अभी आप सभी को बोला कि अगर आपको किसी भी तरह का स्किन डिसऑर्डर होता है, वो पित्त का मैनिफेस्टेशन, तो पित्त इम्बैलेंस में हम लोग बोलते हैं क्लेंजिंग। एक प्रोसेस मैंने आपको वेरिएशन बता दिया, एक नहीं बताया, रक्त मोक्षण, विच इज कॉल्ड एज ब्लड लेटिंग। ओके, सो यानी आपकी जब आपकी बॉडी में कोई भी इम्प्योर ब्लड होता है, नाउ ब्लड इज ऑल्सो रसा रक्ता, ब्लड इज ऑल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ पित्ता। सो अगर पित्ता इंबैलेंस होगा तो आपके ब्लड में आएगा ना, ब्लड प्यूरिफिकेशन, नीम खा लो, कोई भी अर्ब खा लो। बट अगर आपको एक्ने वल्गैरिस हो रहा है तो उसमें आपको ब्लड प्यूरिफिकेशन की जरूरत, इंस्टेंट ब्लड प्यूरिफिकेशन, वेरेचन काम करेगा अंदर जाके, बट जो इंस्टेंट ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है वो होता है ब्लड लेटिंग से। उसका एक बहुत ही अच्छा, इसको हिंदी में कहा जाता है या संस्कृत में कहा जाता है रक्त मोक्षण। अच्छा। और इसका सबसे सिंपलेस्ट प्रोसीजर होता है जलोकावचारण, लीच थेरेपी। लीच थेरेपी, दीज आर मेडिसिनल लीचेस। नॉर्मल लीचेस नहीं है जो पहाड़ों वाली, वो टॉक्सिक होती हैं। सो दीज आर मेडिसिनल लीचेस जिसको कल्टीवेट किया जाता है, बहुत ही अमेजिंग, और इसका तो रिजल्ट विद इन आवर्स आता है। यूजिंग द वर्ड विद इन आवर्स। अच्छा। सो लीच थेरेपी इज अ वेरी नाइस रक्त मोक्षण यानी कि ब्लड लेटिंग प्रोसीजर, जिसमें कि एक मेडिसिनल लीच को आपके अफेक्टेड एरिया पे लगाया जाता है। वो लीच जो है वो इम्प्योर ब्लड, इमेजिन ओनली इम्प्योर ब्लड सक करती है और अपने सलाइवा के साथ कुछ एंजाइम्स ब्लड स्ट्रीम में डालती है। तो जो ये एंजाइम्स, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, हाँ, सो जब ये एंजाइम्स ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा हीलिंग का काम करते हैं और जो टॉक्सिक ब्लड होता है वो बाहर निकल जाए। तो मेरे पास बहुत सारी कॉलेज गर्ल्स, जो हम लोग टीनेज की बात कर रहे थे और एक्ने की बात कर रहे थे, बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज आते हैं
लीच थेरेपी कराने के लिए, इन विच वी पुट द लीच एंड विद इन आवर्स, शाम तक वो मुझे फोन कर देते हैं, डॉक्टर सर वो जो बड़ा सा था ना वो कम हो गया है, उसकी विजिबिलिटी कम हो गई है। द बम्प्स, द पेनफुल बम्प्स। यस, सो जो पित्त का मैनिफेस्टेशन है, जो विशिएटेड पित्त का मैनिफेस्टेशन था, उसको हमने ब्लड लेटिंग के थ्रू भी निकाला और विरेचन के थ्रू भी क्लीन किया। तो ये लीच थेरेपी इज द सेम एज रक्त मोक्षण? इट्स द सेम थिंग? नो, सो रक्त मोक्षण इज अ ब्रॉडर टर्म। उसमें Okay. 3 तरह से होता है, श्रृंग, जलौका, अलाबू। अच्छा। और कुछ लोग रक्तावसेचन भी करते हैं, यानी कि नीडल डाल के भी निकालते हैं, बट जो सबसे सिंपलेस्ट है और एब्सोल्युटली पेनलेस है वो लीच थेरेपी। केवल इतना सा पता चलता है जैसे कोई नीडल प्रिक हुई हो। बट कैन यू डू दैट ऑन योर फेस? Oh yes, leeches can be applied anywhere, believe me. Okay. But it's very important that the leeches are pure and clean. I'm using the word pure and clean. How do you make a leech pure and clean? जब भी कोई लीच थेरेपी का पेशेंट आता है ना, सो देसी एक हमारे पास अच्छा सा एक्वेरियम है, उसमें हमने प्योर फ्रेश लीचेस रख रखी हैं। Okay. तो नॉर्मली हर कोई पूछता है, सर ये लीचेस यूज तो नहीं है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज नॉर्मली व्हेन वी गो टू हॉस्पिटल आल्सो, जब कोई इंजेक्शन लगता है वी ऑलवेज चेक कि वो ओपन कर रहा है हमारे सामने, हैंड ग्लोव्स पहने, हाइजीन एंड द इन्फेक्शन कंट्रोल। द सेम वे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेरेवर प्लेस जहाँ भी आप लीच लगवाते हैं, यू गो टू अ प्रॉपर गुड क्वालिटी प्लेस, जहाँ पे कि सेपरेटली, जैसे मेरे हॉस्पिटल में भी हम लोग क्या करते हैं, वी हैव अ सेपरेट एक्वेरियम एंड देन वी हैव सेपरेट कंटेनर्स, जहाँ पे पेशेंट नेम के साथ में लीचेस रखी जाती हैं, जिससे कि वो सेपरेट रहें, प्लस वो पेशेंट स्पेसिफिक हो, प्लस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर उसमें कि लीचेस को क्लीन किया जाता है, डिटॉक्सिफाई किया जाता है, बिकॉज अगर वो टॉक्सिक लीची किसी के लगा दी गई, it can be very very dangerous. And you make sure that you know that the leeches are pure and clean. For sure. Is there a sterilization process for leeches? As soon as the leech sucks the impure blood, we drain the whole blood out of it. Every single drop of this toxic blood, which is a biomedical waste, it is infectious, क्योंकि toxic blood है, उसको drain किया जाता है, उसको purify किया जाता है, उसके बाद ही उसको बाद में यूज किया जाता है। इनफैक्ट बिलीव मी, हम तो जब कोई नई लीच भी आती है तो उसको पहले क्लीन करते हैं, बिकॉज इफ इट इज नॉट क्लीन then it can, as I said, it is a blessing that it has, the saliva has got a lot of enzymes which are very helpful, even though it has got hirudin. इसका नाम हिरुडिनारिया मेडिसिनालिस है, बिकॉज मेडिसिन है, प्लस इसमें हिरुडिन होता है विच इज एन एंटीकोएगुलेंट। यू विल नॉट बिलीव, कई सारे ऐसे केसेस में जहाँ पे ब्लड क्लॉट्स होते हैं, वहाँ पे भी हम लोग लीचेस को यूज करते हैं। सो स्किन के लिए तो इट्स अ वेरी इंस्टेंट रिलीविंग थिंग। ओके, इज इट पेनफुल? एब्सोल्युटली नॉट, एज आई सेड, इट्स जस्ट अ नीडल prick pain for few seconds, that's all. So acne is one thing, you know, you probably get it more during one stage of life, जैसे early teenage वगैरह, but older age में क्या होता है, like you know, बहुत सारे adults को भी, older adults को भी acne, pimples का issue है। Why does that happen then? बिकॉज इट मे हैपन टू एनी वन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, पित्त इम्बैलेंस, आपको बॉडी में पित्त इम्बैलेंस होगा तो वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। सर्वदा सामान्यम वृद्धि कारणम, इट मींस लाइक इंक्रीजेस द लाइक। एक पित्त प्रकृति का इंसान जिसको ऑलरेडी पित्त इम्बैलेंस है, अगर वो पित्तवर्धक डाइट और डेली रूटीन करेगा तो डेफिनेटली पित्त इम्बैलेंस तो होगा ही, और वो एक्ने के रूप में, किसी भी स्किन डिसऑर्डर के रूप में मैनिफेस्ट होगा। बट व्हाट इज परफेक्ट स्किन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? बिकॉज पित्त वाले तो बहुत सारे लोग होते होंगे, और पित्त एग्रावेटिंग चीजें भी बहुत सारी हैं इस दुनिया में। परफेक्ट स्किन कैसे डिफाइंड होती है आयुर्वेदा में? हाउ डज वन अचीव दैट? देखिए, परफेक्ट स्किन इज वेरिएबल, द वर्ड परफेक्ट स्किन, बिकॉज वात वाले के लिए, जिसकी वाता प्रकृति है, मे बी उसकी स्किन टुवर्ड्स द ड्रायर टोन होगी, बट परफेक्ट होगी। ओके, ही इज प्रोबेबल टुवर्ड्स एक्जिमाज ऑल्सो, ड्राइनेस ऑल्सो, इचिंग ऑल्सो, बट वो परफेक्ट है। सो प्रकृति के हिसाब से आपकी स्किन परफेक्ट होती है। एक और बात यहाँ कहना चाहूंगा, आप कभी भी स्किन के कलर को देखकर ये जज मत करिए कि वो परफेक्ट है। इट इज द हेल्थ, द नरिशमेंट, जैसा कि हमने बिगनिंग में बात की थी कि अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा है, नरिशमेंट अच्छा है, आपका रस धातु अच्छी फॉर्म हो रही है, तो आपकी स्किन भी अच्छी फॉर्म्ड होगी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, बिलीव मी, 60s, 70s, 80s में भी they have such a glowing skin, lustrous skin. Why? Diet important, daily routine important, lifestyle important, and definitely the gut health important. So ये सारी चीजें उस पे मैनिफेस्ट होती हैं। और इसीलिए गट हेल्थ की वजह से भी ओल्डर एडल्ट्स में ये एक्ने और ये सारी इन्फ्लेमेशन वाले इश्यूज काफी हो सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर है तो होगा, और अगर प्रॉपर है तो नहीं होगा। ओके, सो लेकिन लाइफ स्टेज जो है अपना यंगर एज में, आपने मेंशन किया कि ये जो टीनेज वाला टाइम होता है, पित्ता टाइम होता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली इन्फ्लेम होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, और अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ऑटोमेटिकली स्किन में एक्ने और इन्फ्लेमेशन और ऐसे पिंपल्स जैसी चीजें इजिली हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है?
थोड़ा सा पीछे चलते हैं फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे। अच्छा। अपने छोटे बच्चे देखें, स्मॉल बेबीज, Yeah. इतनी सॉफ्ट स्किन है, सपल स्किन या क्यों है? कफा टाइम है। हाँ? अच्छा। अप टू द एज ऑफ प्रैक्टिकली 20 था, बट अब जो है वो 13-14 तक आपकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, बिकॉज कफा टाइम है, ऑयली मॉइस्ट सॉफ्ट स्किन होती है। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, फ्रॉम लेट्स से 13 टीन को लेते हैं, 13 to 40 वाला जो टाइम है पित्त का टाइम है, तो आपकी स्किन थोड़ी सी आप देखोगे वो सॉफ्टनेस नहीं रहती, ऑयली होती है बट सॉफ्टनेस नहीं रहती। एंड दिस इज द टाइम व्हेन यू आर मोर प्रोबेबल टुवर्ड्स द पित्ता रिलेटेड डिसऑर्डर्स, बिकॉज पित्त का टाइम है। 45-50 के आसपास आप वात की ट्रांजिशन में आने लगते हैं। वात की क्वालिटी क्या है? ड्राई, रफ। तो अक्सर आपने देखा होगा 45-50 या लेट जो एडल्ट होते हैं उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है। वो बोलते हैं मैं कितना भी तेल लगा लूं, देखा होगा कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लूं, बट माई स्किन इज ऑलवेज ड्राई बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ वाता। सो वात वाली स्किन मैनिफेस्ट होगी ही होगी, नो मैटर। मे बी वी शुड टॉक अ लिटिल मे बी लेटर अबाउट इट। अगर आप प्रॉपर नरिशमेंट करें, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, योर स्किन is something which you can really love and nourish every day. अगर आप सेल्फ अभ्यंगा कर रहे हैं, इस तरह के प्रोसीजर्स जो डेली रिजाइम के प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो आपकी स्किन उस वाता वाले फेज को भी इजीली निकाल जाएगी। अदरवाइज लेट एजेस में वाता मैनिफेस्टेशन एंड ड्राइनेस ऑफ द स्किन इज वेरी वेरी कॉमन। सो वाता स्टेज यू सेड, लेकिन कई लोगों को तो एजिंग, रिंकल्स आजकल तो 25-20 की एज में हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने तो कहा 45-50 ऑनवर्ड्स वाता स्टेज आ जाता है, तो टेल मी लाइक व्हाट्स हैपनिंग देयर? What's happening? The stress, the adulteration, the lifestyle, the food. 20 में girls and boys have wrinkles. Why? A lot of stresses. So as I said in the beginning also, stress आएगा, pituitary gland in the brain will get disturbed. Pituitary disturb करेगा thyroid को, parathyroid को, adrenal glands को, cortisol levels को, वहाँ उसने डिस्टर्ब किया। और मैंने आपको बोला था इम्बैलेंस होंगे तो इम्बैलेंस हार्मोन्स भी होंगे, इसीलिए आजकल 30-35 में भी wrinkles, blemishes, melasma, it's so common. The reason is stresses and improper diet and daily routine. चलो मान लो कि stresses is one causes of all of this, but how does one really take care of their skin at each stage? आप मेरे को each stage में बताओ कि पित्ता स्टेज में आपको ये करना चाहिए, कफा में ये करना चाहिए, वाता में ये करना चाहिए, and also explain it to our viewers, what these stages really entail with them. हम अगर स्टेज वाइज नहीं भी जाएं, एक सिंपल रिजाइम की बात करते हैं, बहुत सिंपल। बिकॉज अगर हम स्टेज की बात करेंगे, प्लीज डोंट माइंड, तो लोग शायद थोड़े देर कंफ्यूज हो कि अभी मेरी कफा वाली चल रही है पित्ता, तो हम सिंपल नरिशमेंट की बात करते हैं, जिससे आप अपनी स्किन को रियली पैम्पर कर सकते हैं, अपनी बॉडी को प्यार भी कर सकते हैं थोड़ा सा। ये बहुत सेल्फ लव बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी यूरोप वाले वेबिनार्स में मैं अक्सर सेल्फ लव की बात करता हूँ, जिसमें मैं हमेशा बात करता हूँ सेल्फ अभ्यंगा की। सेल्फ अभ्यंगा मतलब सेल्फ बॉडी मसाज। देखिए, कहने के लिए तो बॉडी मसाज नॉर्मली सब बोलते हैं, इट्स मोर रिलैक्सिंग, इट गिव्स स्ट्रेंथ टू योर बॉडी, बट व्हेन यू बेसिकली डू दिस सेल्फ अभ्यंगा, you basically pamper your skin, and the skin is a semi-permeable membrane. Okay, I understand that this oil doesn't goes inside कि 200 milliliter oil लगाया तो body के अंदर सारा oil नहीं जाएगा, but the impact, the strokes, it basically goes subtle in the step-by-step layers of the skin. So when you're doing self-abhyanga, you're not just working on the avasini. You remember 7 layers? You're going to the Lohita, Shweta, Tambara, Vedini, Rohini. धीरे 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 आप बेसिकली अपनी स्किन की सारी 7 लेयर्स के अंदर जा रहे हैं, एंड दिस ऑयल इज नॉट जस्ट नर्चरिंग, इट इज हीलिंग ऑल्सो. सो व्हेन यू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, इट्स गोना हेल्प यू stay away from any kind of diseases also, any kind of infections also, and very commonly allergies also. मुझे ऑयल्स बताइए, किस तरह के बॉडी टाइप को किस तरह के ऑयल्स यूज करने चाहिए? That's a very good question. Normally sesame oil, जैसे तिल का तेल बोलते हैं, वो हर कोई बॉडी टाइप वाला यूज कर सकता है, बट if your body has more kapha dosha, so always understand we are always combination of all the 3 doshas, but one is the most dominant. अगर आपका बॉडी में ज्यादा कफा दोषा है तो आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज करिए. अगर बहुत ज्यादा पित्ता दोषा है, यानी इफ यूर पित्त प्रकृति पर्सन, देन द कोकोनट ऑयल इज गुड, एंड इफ इट इज वाता देन सेसम, जैसे हम लोग तिल का तेल बोलते हैं, वो आप रेगुलरली सेल्फ अभ्यंगा के लिए यूज कर सकते हैं. एंड हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू मसाज माय बॉडी फॉर doing self abhyanga? See, self abhyanga should be 10 to 15 minutes. If you can do it on an everyday basis, it's wonderful, because in 10 to 15 minutes you can cover each and every part of your body, and you can really love your body a little. और ये once a day करना है? Yes, every day once. Before shower. Before shower. ऑयल्स हम लोगों ने बात कर ली, आप मुझे और चीजें बताइए कि मैं अर्ली ऑन इन लाइफ अपनी स्किन की कैसे, how can I take care of my skin early? As we discussed in the beginning, gut is the most important. तो हम gut को क्या फीड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. अगर आप उसको एसिडिक फीड करोगे तो आपकी बॉडी एसिडिक होगी, आप उसको बेस फीड करोगे तो बेस होगी. सो द सिंपल इज एल्कलाइन फीड करिए. अच्छा, एल्कलाइन फीड करिए मतलब
have more green leafy vegetables, have good amount of fruit also. Don't take a lot of citrus fruits. अच्छा, Not a lot of. ठीक है. But all juicy fruits are very good. आप juicy fruits देंगे, the same will get manifested on your skin also. अक्सर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि आपकी बॉडी में ऐसे करो तो ड्राइनेस हो जाती है. Yeah. But those people who are having good vegetables and fruits, and ghee is also very important. अच्छा. Ghee is maybe a little controversial, हाँ. but ghee is very very important for your skin. बट कितना घी लेना चाहिए एक दिन? Depends on अग्नि. अच्छा. बट अग्नि को बैलेंस करता है घी. सो 1 से 2 चम्मच आप आराम से घी ले सकते हैं. आपकी बॉडी में अंक्शियसनेस, जो ऑयलीनेस होती है, वो घी से आएगी. अक्सर लोग फैट्स को कंप्लीटली अवॉइड कर देते हैं कि ये बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा. ऐसा नहीं है. दिस इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट for the healthy skin. Can I apply ghee on my skin? Yes, you can, but people usually don't. Okay. सब Because अपने मैंने आप बहुत लीजिए, सारे good. घी के preparations देखे हैं मार्केट में जो like they put ghee on their skin. So I just wanted to know whether that really helps. It helps, but basically, if I go a little bit more in detail, Ayurveda में there are certain medicated ghees. अच्छा. जैसे शतधौर घृत हो गया, जात्यादि घृत हो गया, उनके अलग अलग रोगाधिकार हैं. सो देर आर meant for certain diseases, but जो एक वैद्य या फिर I think डॉक्टर on ही a बता practical सकते हैं. basis, if you are using these oils, they are good enough for your skin. तो घी हो गया. आहार आपने बोला कि अल्कलाइन आहार ज्यादा लीजिए. What about some herbs? Can I add some herbs to my food? Small disclaimer, herbs जब भी लीजिए ऑलवेज अपनी प्रकृति विकृति का एनालिसिस वैद्य से करा के लीजिए. बट अदरवाइज मधुयष्टि जैसे मुलैठी कहते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर यू. मंजिष्ठा बहुत अच्छा है. नाग केसर बहुत अच्छा है. इवन अश्वगंधा ऑल्सो. देखिए, आप इस चीज को समझिए. डोंट थिंक अबाउट द शॉर्टकट्स. होलिस्टिकली चलना है तो आपका गट भी स्ट्रांग रहे, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा हो, तभी वो हर्ब आपको बेनिफिट भी देगी. तुलसी, बेसिल, अच्छा. एंटी एलमेंथिक प्रॉपर्टी होती है. नॉर्मली स्किन पे कोई भी डिजीज होती है, आप आजकल बहुत कॉमनली लोग समझ रहे हैं, दे पुटिंग तुलसी एप्लीकेशन. एलोवेरा बहुत अच्छा है, गिलोय बहुत अच्छा है. सो दीज आर सिंपल हर्ब्स जो आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, एंड दे कैन रियली हेल्प यू. बट इनको खुद नहीं लेना है, थोड़ा हाँ, अपना please. कॉन्स्टिट्यूशन समझ के लेना Yeah, है. yeah. बट मेरे को मुलेठी के बारे में बताइए. बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि मुलेठी भी स्किन के लिए हेल्पफुल होता है, जो लोगों को नहीं पता होता Yeah. है. कैन इट बी टेकन सेफली एट होम? ओ यस. Okay, मुलेठी how? में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप मुलेठी हाफ टी स्पून, इफ यू हैव नो प्रॉब्लम विद द मिल्क, अगर आप आधी चम्मच रोज रात को दूध के साथ लेते हैं, बहुत अच्छा है. मुलेठी को हमारे आयुर्वेद में व्रण रोपक भी कहा जाता है, यानी वूंड हीलर. अच्छा. अगर आपकी बॉडी में कोई वूंड भी हो गया तो भी काम करेगा. अच्छा. एसिडिटी हो गई तो भी काम करेगा. पित्त को बैलेंस करेगा, वायु और कफ को स्ट्रॉन्ग रखेगा, आपकी स्किन को इंप्रूव करेगा, आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा. प्लस बाकी मुलेठी के जितने भी बेनिफिट्स हैं, दैट वी ऑल नो. Yeah. बट मुलेठी इज वेरी गुड इन absorbing the nutrition also. So it works in the gut lining and helps the other nutrients to absorb. So जो मुलेठी है, it's basically cooling. अच्छा. ये गर्म नहीं है, कूलिंग है. तो लेकिन इसको फिर कफ के लिए क्यों लेते हैं? वो- मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, खांसी के लिए भी लेते हैं. हाँ. आयुर्वेद में 4 चीज होती है: रस, गुण, वीर्य, विपाक. अच्छा. तो जो उसका रस है वो मधुर है, मीठा है अच्छा. ना. जो उसका गुण है वो कफ निस्सारक है, इट मींस इट इज म्यूकोलाइटिक. तो उसका एक्शन जो है म्यूकोलाइसिस करता है. अच्छा. बट बेसिकली वो कूलिंग हर्ब है. इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस जो कि स्ट्रॉन्ग पित्ता रिलेटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, वहां पे भी मुलेठी का यूज करते हैं. मुलेठी इज अ अच्छा. कूलिंग हर्ब, हाँ. बट इट ड्रेन्स द कफ, सो इट इज हेल्पफुल इन कफा निस्सारण आल्सो. तो बट फॉर स्किन आप कह रहे हैं कि वो पित्त को Balance बैलेंस में करता है. लाता है Yeah, और yeah. न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है. इसलिए मुलेठी या यष्टि मधु भी यष्टि मधु. जिसे कहा जाता है, उसका हाफ टी स्पून पाउडर विद मिल्क Milk कैन at बी bedtime. टेकन सेफली Yeah. एट बेड टाइम. Yeah. कैन आई ऑल्सो हैव इट विद वाटर इन केस पीपल हु डोंट लाइक? Why not? For sure, for sure. Okay, so this is a good summation of everything. One topic that we didn't touch, which is very very common these days, hyperpigmentation. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है and almost I think every young woman, young man out there is struggling with this. That's true. ये होता क्यों है? Well, देखिए, hyperpigmentation, as we discussed in the beginning also, there are many reasons. Hormone is definitely one reason. अच्छा. Stress is definitely one reason. But hyperpigmentation जब होता भी है तो there are, as I said, there are 7 stages. वो शुरुआत में ही अगर हम उसे कंट्रोल कर लें, बैलेंस कर लें, इफ यू गॉट हाइपरपिगमेंटेशन, इट्स बेटर यू मीट अ डॉक्टर, वैद्य फर्स्ट, बिकॉज वो आपको बताएगा आपकी प्रकृति ऐसी, विकृति ऐसी है, और ये सारी चीजें करनी है. इनफैक्ट हाइपरपिगमेंटेशन के केसेस में हम बहुत सारे लोग उपटन बोलते हैं, बट हर्बल मेडिसिनल पेस्ट भी यूज कर सकते हैं जो बहुत अच्छे हैं. तो अच्छा. 2 तरह से काम करेंगे अगर हाइपरपिगमेंटेशन होगा. हार्मोन्स पे काम करेंगे, स्ट्रेस पे काम करेंगे, और आपके गट पे, जो मैंने शुरुआत में 3 बोली, वी गोना वर्क ऑल द 3 प्लेसेस ऑल टुगेदर, तभी हाइपरपिगमेंटेशन ठीक होगा. कॉस्मेटिक अप्लाई करने से
नहीं होगा नहीं actually, होगा। नहीं होगा। बट मुझे ये बताइए, आपने कहा हाइपर पिगमेंटेशन हो तो अब बहुत लेट हो चुका है, Yeah. तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन फ्यूचर में होने वाला है? हाउ विल आई गेट टू नो दैट समथिंग इज गोइंग टू शो अप ऑन माय स्किन? Body always give you some small indication and hints. We normally avoid putting notice on them. Okay. होता क्या है, जैसे कहीं पे भी एक छोटा सा मार्क हुआ, ब्लैक मार्क शुरू हुआ, तो हम सोचते हैं कुछ भी नहीं है, तो जरा सा कुछ हुआ है, लेट्स अप्लाई सम क्रीम आल्सो, बट दैट इज वी डिस्कस अबाउट द 7 layers. Yeah. इट मींस ये फर्स्ट लेयर में आ गया है, वो जैसे जैसे डीप लेयर्स में जाता जाएगा वैसे वैसे वो डार्क होता जाएगा। तो फर्स्ट लेयर में ही अगर आपने जो पंचकर्म का प्रोसेस है, इफ यू डू द पंचकर्मा, इफ यू डू द अदर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स and you have a proper diet with some herbal support also, you can really get rid of it totally. Can Kumkumadi oil help with It does hyperpigmentation? help. Definitely Kumkumadi has wonders. Okay. I have a lot of success stories about it. I will not Achha. talk a lot, but I have a lot of success stories, especially with the hyperpigmentation melasma patients. But I will again say, Kumkumadi oil आप फेस के लिए यूज करिए, इट्स वंडरफुल। साथ ही साथ अपने गट का, हार्मोन्स का, स्ट्रेस लेवल्स का ध्यान रखिए, जिससे वो दोबारा रिलैप्स ना हो। और कुमकुमादी ऑयल का जो इंडिकेशन है वो नरिशमेंट के लिए भी है। सो बेसिकली आप अपनी स्किन को एक फूड दे रहे हो विच इज नॉट केमिकल बट सम हर्ब्स। Herbs. Can I use it during summer? यस, व्हाई नॉट? अगेन प्रकृति इज वन थिंग, एंड ऑल्सो नॉर्मली आपने देखा होगा नॉर्मली क्रीम कैसे लोग यूज करते हैं, जितनी ज्यादा लगा लो उतना अच्छा। Yeah. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुमकुमादी ऑयल इज पोटेंट इनफ टू वर्क ऑन योर स्किन। Can Kumkumadi oil be used in summer? Yes, definitely. But I always suggest people and my friends to use Kumkumadi oil at bedtime. Okay. 2 reasons. पहली बात, अगर आप ऑयल को दिन में लगाते हैं तो सनरेज होती है, राइट? जब सनरेज होगी तो बेसिकली यूवी एब्जॉर्ब होगा, तो इट इज नॉट सच अ गुड आइडिया। सो बेटर टू यूज इट एट बेड टाइम। 2-3 ड्रॉप्स लीजिए, फेस पे लगाइए, हल्का सा लगाना है, रगड़ना नहीं है। सेल्फ बॉडी मसाज के लिए ठीक है, बट जब आप फेस पे करते हैं तो स्किन इज सॉफ्ट। 0.1 mm की स्किन होती है, यहाँ पे बहुत थिन लेयर्स होती हैं, तो आपको हल्का सा अप्लाई करना है रात को बिफोर गोइंग टू बेड, और सुबह उठ के अच्छे से पहले फेस वॉश करना है, देन आफ्टर द अदर रूटीन। बट इट इज बेटर टू यूज इट एट बेड टाइम, बिकॉज जो इसकी हर्ब्स है ना, उसका एब्जॉर्प्शन रात को बहुत अच्छा होगा। सुबह तो आप बाहर होते हैं, पोल्यूशन में होते हैं, हर तरह से होता है, तो ऑयल एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको भी स्टिकी हो जाएगा, फिर एक्ने वगैरह हो सकते हैं। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, यूज इट एट बेड टाइम। ऑल ईयर अराउंड इट इज द बेस्ट वे। बट विंटर्स में क्या दिन में यूज कर सकते हैं? विंटर्स में कर सकते हैं, बिकॉज द सनरेज आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट स्टिल माय सजेशन इज रात को यूज करिए, अच्छा इफेक्ट आएगा और लॉन्ग टर्म ज्यादा देर तक लगा भी रहेगा ना। यस यस, ऑफ कोर्स। क्या चीजें हैं जो स्किन डिसऑर्डर वालों को एब्सोल्युटली अवॉइड करनी चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, एंड दैट इज विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार बहुत लंबा डिस्कशन होता है, बट सिंपल सी बात है, जो चीजें अपोजिट है, आपने देखा ना, जैसे 2 दोस्त जिनका नेचर अपोजिट होता है वो साथ नहीं रह सकते। साथ रहेंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा सब कुछ। लेट्स टेक एग्जांपल, दूध और फिश, या दूध और पराठा। पराठा अक्सर लोग दूध में डाल के खा रहे होते हैं, या चाय, ये सारी चीजें विरुद्ध आहार है। तो विरुद्ध आहार स्ट्रेट अवे इम्पैक्ट नहीं करेगा। आप बोलोगे क्या डॉक्टर साहब, मैं तो पिछले 1 साल से खा रहा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। बट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी, देयर आर 6 स्टेजेस: एक्यूमुलेशन, एग्रीवेशन, मैनिफेस्टेशन, ब्ला ब्ला एंड ऑल दिस थिंग्स। सो एक्यूमुलेट हो रहा है दोषा, आप ये मत सोचिए नहीं हो रहा, वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा। सो इसलिए विरुद्ध आहार सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके अलावा जंक खा रहे हैं, ये प्रोसेस फूड खा रहे हैं। जंक में तो ऑलरेडी बहुत सारे विरुद्ध आहार होते ही हैं। व्हाइट सॉस पास्ता Oh खाते my हैं, God. उसमें नमक और मिल्क इकट्ठे होता है, एंड यू आर सेइंग दैट्स रियली बैड फॉर दोज हु For the हैव स्किन skin, I'm डिसऑर्डर। using the word for the skin because skin पे manifestation सबसे पहले होगा। पेन, जॉइंट्स, ये सब भी होंगे, बट स्किन पे manifestation डेफिनेटली होगा अगर आपने विरुद्ध आहार खाया तो। So अच्छा। सबसे इंपॉर्टेंट है नीट फूड, हाइजीनिक फूड एंड डेफिनेटली compatible food, not incompatible food. Not incompatible food. Okay, anything else that we need to take care of? So I would just like to give a simple suggestion to everyone. There is no shortcut for a great skin. The cut is long but long lasting also. Have good food, have food on time, good routine, self-rubbing every day, nourish your skin every day, nourish your gut every day. And my friends, very important, टाइम टू टाइम क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टाइमली पंचकर्मा लीजिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इट इज पॉसिबल फास्टिंग भी करिए। गिव सम रेस्ट टू योर गट, एज वी डिस्कस गट इज द मेन ऑर्गन, राइट? अगर आप टाइम टू टाइम उसको फास्टिंग कर दें, जैसे एवरी 2 वीक्स आपने एक फास्ट कर लिया, डिपेंडिंग ऑन योर प्रकृति, मे बी विद द जूसेस और मे बी वेजिटेबल सूप्स और मे बी सम हर्बल डिकॉक्शंस, fasting will definitely help you a lot because it will take the toxins out
and you have a better glowing skin. आई थिंक दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन डॉक्टर सौरभ. हम लोगों ने ये समझ लिया कि एक तो स्किन जो है उसकी जो 7 लेयर होती हैं शुरू में साइंस दिखाएंगी. आप बहुत केयरफुली देखिए, आपके थोड़े भी साइंस दिख रहे हैं उसी वक्त उस प्रॉब्लम को स्टॉप करिए, बिकॉज स्किन में आने में, पूरा मैनिफेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है. मतलब आपके दोषा इम्बैलेंस ऑलरेडी बहुत पहले हो चुके हैं, एंड व्हेन इट स्टार्ट शोइंग अप इन स्किन इट एक्चुअली हैज बिकम क्वाइट लेट, बट नॉट लेट इनफ for you to take Ayurveda treatment. So go and get your pulse checked by a Vaidya. अपनी प्रकृति, अपना current imbalance समझिए. Alkaline food को prefer करिए over acidic food. That is very important. विरुद्ध आहार यानी incompatible food are highly an absolute no if you have a skin disorder. Make sure that you understand कि life के different stages होते हैं. टीनेज में डिफरेंट हार्मोन्स की वजह से एक पित्ता पीरियड है तो पित्ता एग्रीवेटिंग चीजें उस वक्त कम खानी है, और उसके बाद जो वाता पीरियड होगा या कफा पीरियड होगा उसमें आप डिफरेंटली अपनी स्किन को अप्रोच करेंगे. एजिंग और हाइपर पिगमेंटेशन भी इजीली सॉल्व हो सकती है, लाइक डॉक्टर सौरभ मेंशन्ड. केसेस ऑफ सोराइसिस, एक्सीमा कैन ऑल्सो बी क्योर्ड. सो इट्स नॉट द एंड if you have tried a lot of options. Come to Ayurveda, there are a lot of options for you. Don't think that हम लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी आयुर्वेदा लेने में. लीच थेरेपी इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया एक्ने के लिए, जो बहुत यंग लड़कियां, यंग लड़के लेते हैं, एंड इट्स नॉट पेनफुल as I understood from him. It is very a little but it's not painful. It is very effective. So make sure you take care of your skin, eat well, rest well, stress कम लीजिए, and I think that should be the end of all. And at the end of the day, every type of skin is beautiful. Ayurveda also says आपकी प्रकृति के हिसाब से आपकी स्किन का कलर होगा, आपकी स्किन का टेक्सचर होगा. So whatever type of skin you have, just be happy. That's all that matters. And happy life is happy skin as well, as Dr. Saurabh mentioned. Make sure you share our video with your friends and like, subscribe, comment. Jai Gurudev.